بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں کوسچن نمبر 9 سے لے کر 16 تک اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے ان فنکشنز کا انورس فائنڈ کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے دھیان سے میری بات سننی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے کسی بھی فنکشن کا انورس فائنڈ کرنا ہو تو آپ لوگوں نے کون سا پروسیجر اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے فنکشن کو y از اکول ٹو ان ٹرم آف x، یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے y از اکول ٹو ایف آف ایکس ہوتا ہے، تو اس ایف آف ایکس کی جگہ پر آپ لوگوں نے y پٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس پورے فنکشن کو y کے ایکول رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کو y نظر آئے گا وہاں پہ آپ لوگوں نے x پٹ کر دینا ہے، اور جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ y پٹ کر دینا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور تیسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوسرا سٹیپ جو بنایا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے y کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ آپ ویڈیو کو روک کے دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوسچن نمبر 9 کو سولو کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ کوسچن نمبر 9 ہم سولو کرتے ہیں۔ یہ تینوں سٹیپ لکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ لوگوں نے کسی بھی فنکشن کا انورس فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس فنکشن کو y کے ایکول لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے سٹیپ میں سویپ x اینڈ y، مین کہ جہاں پہ فنکشن میں x ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے y پٹ کرنا ہے، اور جہاں پہ y ہوگا وہاں پہ x پٹ کر دینا ہے۔ اور تیسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے y کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ان ٹرم آف x، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس y کا آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، فنکشن کا انورس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کوسچن نمبر 9 ہمارے پاس ہے۔ ہم سب سے پہلے پہلا سٹیپ اس کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں۔ پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہے، ہم نے سب سے پہلے اس فنکشن کو y کے ایکول لکھنا ہے۔ تو دیکھیں، اسٹارٹ ود y از اکول ٹو 7x - 6، میں نے اس فنکشن کو y کے ایکول لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ y کے ایکول لکھنے کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جہاں پہ y ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے x پٹ کر دینا ہے، اور جہاں پہ x نظر آ رہا ہے وہاں پہ y پٹ کر دینا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تو یہ دیکھیں، سویپ x اینڈ y، تو یہاں پہ y ہے، میں نے یہاں پہ x پٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح 7x ہے، اور اس x کی جگہ پر میں نے y پٹ کر دیا ہے، اور -6 جو ہے یہ ایز اٹ از آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے سٹیپ کی امید ہے سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے اسی سٹیپ کو لے کے مین کہ اس سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے y کی ویلیو فائنڈ کی ہے، یہاں سے y کی ویلیو فائنڈ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں، سمپل آپ لوگ y کی ویلیو فائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے y کی ویلیو فائنڈ کر لی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو y کی ویلیو آئی ہے ان ٹرم آف x، یہ ہمارے پاس فنکشن کا انورس ہی ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں f انورس آف x از اکول ٹو x پلس 6/7، ٹھیک ہے۔ تو باقی تمام کوسچن اسی طرح سے ہی سولو ہونے ہیں۔ اب دیکھیں، کوسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، f of x is equal to x plus 1/x minus 1۔ تو پہلا سٹیپ ہے، میں نے اس فنکشن کو y کے ایکول لکھا۔ اب دوسرے سٹیپ میں جہاں پہ y نظر آ رہا ہے وہاں پہ x پٹ کر دیا، اور جہاں پہ x نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں نے y پٹ کر دیا۔ اب میں نے اس سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے y کی ویلیو نکالنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو y کی ویلیو کیسے نکالیں گے، یہ دیکھیں، سولو فار y، ملٹیپلائی بوتھ سائڈ بائی y - 1۔ تو
दोनों साइडों पे ना हमने y-1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये देखें, और यहाँ से मैंने ये देखें x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस y वाली टर्म को मैं इधर लेके आ गया। देन y कॉमन आएगा, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू है ये फंक्शन का इन्वर्स है। इसी तरह बाकी सवाल है, इनमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप देख लें। सबसे पहले मैंने y की इक्वल लिखा इस फंक्शन को, फिर मैंने y की जगह पे x पुट किया और जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने y पुट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह मैंने y की वैल्यू निकाली है और ये हमारे पास जो y की वैल्यू है, अब देखें यहाँ पे y की पावर 3 है, यानी कि क्यूब है। तो जब आप ना इस क्यूब को ख़त्म करेंगे तो इस सारे की पावर में क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो उस 1/3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, ये हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी सिंपल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, y की इक्वल लिखा सबसे पहले फंक्शन को, फिर y की जगह पर x और जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट किया। देन हमने इस स्टेप को यूज़ किया और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये देखेंगे हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो ये हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, f(x) = 3/x² विद x लेस से 0 से। ठीक है, अब ये कंडीशन भी है हमारे पास, तो प्रोसीजर वही है सारा। आप लोगों ने इस फंक्शन को y की इक्वल लिखा और फिर y की जगह पर x और x की जगह पर y पुट कर दिया है। ठीक है, और देन यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली है, ये देखें यहाँ पे y का स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, जब आप ना स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है साथ में। ठीक है, तो उसने ना बताया हुआ है हमें फंक्शन में, उसने पहले ही हमें दिया है कि x हमारा जो है ना वो लेस है 0 से, तो हम क्या करेंगे फिर, अब इस चीज़ का हमने यूज़ करना है कि हमने अंडर रूट जब ख़त्म करते हैं ना, जब हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के साथ तो प्लस माइनस 1 आता है, दोनों मीन के साइन आते हैं, एक प्लस साइन आता है, एक माइनस साइन आता है। तो हमने माइनस वाला क्यों लिया है, इस वजह से लिया है कि x हमारे पास जो है ना वो 0 से लेस है, सिर्फ इस चीज़ का ये मतलब है, यहाँ पे माइनस लिया है हमने। ठीक है, तो इस चीज़ की उम्मीद है सबको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स आ गया है। ठीक है ना, ये देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक, अब देखें यहाँ पे ना x > 0 है, तो पहला स्टेप तो वही है, y = 5/x² + 1। देन हमने y की जगह पर x और x की जगह पर y पुट किया और फिर हमने y की वैल्यू निकाल ली है, ये देखें y की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे ना हमारे पास है y², तो इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ना x गिवन है > 0 एंड y > 0, सो वी टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब देखिए ना हमारे पास गिवन था कि x या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, तो उसके लिए हम ना पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं।
तो ये हमारे पास इन्वर्स है, ठीक है, ये उसने लिख दिया हुआ है, ये सारी चीज़ उसने खुद लिख दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को अब मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ना पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन किस तरह के फंक्शन को कहते हैं? अब देखें, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो स्प्लिट है, इस वजह से इस फंक्शन को पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन कह देते हैं या पीस वाइज फंक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। कि मीन के इस फंक्शन की जो डोमेन है उसके पीस हैं, टुकड़े बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक केस नंबर 1 होगा और दूसरा केस नंबर 2 होगा। तो केस नंबर 1 के लिए यानी कि x लेस है 2 से, तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अब प्रोसीजर वही है, ये देखें, इस फंक्शन को मैंने y के इक्वल लिखा, देन हमने y की जगह पर x पुट कर दिया और x की जगह पर y पुट कर दिया और यहाँ से y की वैल्यू निकाली। अब ये देखें, हमारे पास ये जो y की वैल्यू है ये फंक्शन का इन्वर्स है। Thus for the first case f inverse of x is equal to 5/2 minus x, ये हमारे पास इन्वर्स है when x ग्रेटर है 1/2 से। अब ये 1/2 कैसे निकला है, ठीक है ना, ये 1/2 कैसे आया है, यहाँ से आया है, ये देखिए ये 1/2 यहाँ से आया है, ठीक है। मीन के 1/x किया और ये ग्रेटर और इक्वल टू हो गया, सॉरी इक्वल टू तो है नहीं लेकिन ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इनक्वालिटी को उल्टाते हैं ना तो ये हमारे पास जो साइन है ये भी उल्ट जाता है, यानी कि 1/x करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1/2 बन जाएगा। सिंस f of x फॉर x लेस देन 2 रेंजेस फ्रॉम 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास केस नंबर 2 है। इस केस नंबर 2 को आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है इजी बहुत, ठीक है, खुद सॉल्व करना है। तो ये देख लें, आंसर वैसे भी दिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इस 16 क्वेश्चन नंबर को आप देख सकते हैं, इसके लिए भी 2 केस हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास है x लेस और इक्वल 0, ठीक है। तो हमने फंक्शन को y के इक्वल रखा, देन y की जगह पर x और x की जगह पर y पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है और ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है, ठीक है। तो ये देख लें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से केस नंबर 2 है, इसको भी आप लोग देख लें और फाइनली हमारे पास इस फंक्शन का जो इन्वर्स आ जाएगा वो ये वाला है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।